जी, हम उपेक्षा की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो आज सुबह बनते जी से बात हुई तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम उपेक्षा पे भी एक थोड़ी चर्चा कर लें, अलग से इंडिपेंडेंटली। उसके जो विभिन्न मतलब निकाले गए हैं हमारे लिटरेचर में, तो एक समय तो मुझे लगा कि शायद उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा काफी। तो मैंने एक मिडिल पाथ से निकाला है, जस्ट मेंशन the various usages of the word without going into details. इससे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा हम 5-10 मिनट चुपचाप शांति से बैठ लें ताकि चित्त समाहित हो जाए, because we'll be discussing so many things that to be able to put them together may be a bit difficult. तो 5-10 मिनट हम चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर चर्चा करें। Let us begin the contemplation. The term Upekkha occurs in our suttas in various forms. Can anybody recall? कई सारी लिस्ट है ना हमारे भगवान की शिक्षा में, कई लिस्ट आती हैं जिसमें उपेक्षा इस्तेमाल होती है। तो अगर हम वो रिकॉल करें तो थोड़ा हमको क्लैरिटी हो जाएगी। कैन एनीबडी रिकॉल वन लिस्ट? आई विल टेल Bhojanga. And this is seventh Bhojanga. Now another list. सर पारमी में? Yes. Last Parmi also, 10th Parmi. Then I think Dharsab isn't. We have it in the jhanas, we have it in Brahmavihars. Yeah, it is a Brahma Vihar, fourth Brahma Vihar, jhana factor. And then we have Upekkha as a kind of Vedana. Now all these जो अब तक हमने किए उन सब में उपेक्षा is a mental factor. It is a sankhara. And to make things difficult for us, we can complain to Lord Buddha. Most of the time he uses the word adukhad, asukhad, vedana. But at some places, upekha is also used. Especially in commentary literature, कई जगह उस वेदना को उपेक्षा कह देते हैं, neutral है. So first thing we have to make clear is that what do you mean when you use the term upekha? You mean a vedana or you are a mental factor? And unfortunately, in the Salayatan Sutta also there is an ambiguity. Dharsab, sorry, आप mental factor कह रहे हो और I mean because even sankhar is a mental factor, for example, isn't it? Yeah. So maybe just in terms of terminology, if I may request. Yeah, they are all mental factors. Yeah, exactly. Right. So when you say, yeah, sorry. Please Vedana, I'm talking of Vedana now. Vedana. Upekha is also used to describe asukhad, adukhad Vedana. So there it becomes one of the kinds of three Vedanas, कहे जाते हैं तीन Vedana. Sukhad, adukhad, sudukhad and asukhad, adukhad. तो असुखद अदुखद को कई जगह उपेक्षा कहा. और इस तरह की एम्बिग्यूटी कई जगह है कि उपेक्षा शब्द संखार के रूप में यूज हो रहा है, मेंटल फैक्टर के रूप में यूज हो रहा है कि वेदना के रूप में यूज हो रहा है. तो जब और एक जाना फैक्टर के रूप में यूज हो रहा है तो वहां पे उसकी कॉनोटेशन मेंटल फैक्टर है और उसके इक्विवेलेंट देयर इट हैज बोथ द मीनिंग्स. एक्चुअली इट हैज द मीनिंग ऑफ mental factor
balance. It also has a meaning of the experience of neutrality. अदुखद असुखद वेदना. तो इस कारण से थोड़ी कठिनाई हो जाती है. और इस सूत्र में भी सलायतन विभंग सूत्र में शब्दावली ऐसी है कि वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है, क्योंकि सोमनस्य दोमनस्य जो है दे आर जनरली ट्रीटेड एज अनप्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट मेंटल वेदना फीलिंग्स. जब हम 5 वेदनाओं की बात करते हैं तो दो एक कहते हैं प्लेजेंट मेंटल bodily feeling, unpleasant bodily feeling, and then there sukhad vedana, and then we say somanasya domanasya and upekkha. So then there it is used as a vedana. Now this is, I think, the most important aspect which we have to really keep in mind. As far as the meaning is concerned, upekkha as a mental factor is best described by the term which is synonymous for जो इसका synonym है अभिधम्म में तत्र मज्जता. Their middleness, having a middle balance, maintaining a balance. तत्र मज्जता शब्द कहीं और नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ अभिधम्म में होता है. And I can see that this has been coined primarily to remove this confusion. So Upekkha as a mental factor means balance. You can see it everywhere. When we take Upekkha as a Brahma Vihar, what does it stand for? We say, what do we practice? We say, Kammasya Komi, Kammadayado, and so on. Why do we recite all that? ताकि हमारा बैलेंस बन जाए. और उसका रोल क्या है? बाकी तीनों ब्रह्म विहारों को बैलेंस करके रखना, कहीं वो इधर उधर न चलते जाए. So मेत्ता के साथ उपेक्षा साथ चलनी चाहिए, तभी वो मेत्ता रहेगी, नहीं तो वो अफेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है. I have mentioned it many times. करुणा के साथ रहेगा तो वो करुणा रहेगी. अगर वो नहीं रहेगा, it can slip into its near enemy, which is the व्यथा हो जाती है. Then मुदिता के साथ रहेगा तो it will be sympathetic joy. अगर नहीं रहेगा तो it will lead to excitement. Similarly, with respect to Bhujangas, you can see. So you can see similarly with respect to the paramis. You can see with respect to the in jhana factor, of course, as I mentioned, it's an ambiguity. It is used in both the sense, because it is said equanimity is present in all the jhanas, but in the fourth jhana there is primarily equanimity, और उसमें neutral feeling होती है. पहले आता ना प्रीति, प्रश्रब्धि, these are the mental factor, वितक्क विचार, प्रीति, प्रश्रब्धि, then ekagata, and upekkha also is used sometimes. So you can see first jhana, second, third, fourth jhana is basically ekagata and upekkha bhavana. There upekkha stands for balance as well as neutral feeling. तो इस संक्षिप्त चर्चा को मध्य में रखते हुए we can now see what exactly is the implication here, and you will see the slight difficulty or slight ambiguity here also, क्योंकि जो शब्द यूज किए गए हैं वो सोमनस से दोमनस से यूज किए गए हैं.
which are basically used for pleasant and unpleasant mental feelings. And then third case में आ गया है Upekkha. So it could be seen in terms of feelings. But if you look at the details of it and the initial part में कहा गया 36 सत्पदा वेदितम, 6 place these positions of beings. Satta means satta or pada means positions. Now, what this position word means is generally by most commentators is interpreted as the mental states. तो इसलिए वो उसको हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस की तरह ट्रांसलेट करते हैं, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद उसी तरह से कर दिया. लेकिन अगर आप सोमनस्य की टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो वेदना के रूप में आती है. अब यहाँ पे जो जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कोई याद करता है तो अब उसमें से इट कैन लीड टू अ प्लेजेंट फीलिंग एंड ऑल्सो मीन द प्लेजेंट मेंटल फैक्टर अराइजिंग बेस्ड ऑन, जैसे हमने सोमनस्य की बात की, चाहे वो गृहस्थ वाली हो चाहे त्याग आधारित हो. So you can see that both the things are valid actually in all of these cases. In some cases, it seems a bit more oriented towards the mental factor. जैसे अप्रिय बारे में कहा गया कि एक लालसा जागती है. Now लालसा is a kind of a mental factor and it has the tinge of craving in it. तो जो त्याग आधारित अप्रसन्नता हमें जैसे कहा गया पीह पच्चया दो मनस्संग. अब पीह is a mental factor, it's not coming strictly in the list, but उससे बात किया गया कि दो मनस्य हुआ. Now दो मनस्य could mean unhappiness, it could mean unpleasant mental feeling, and both the things will happen. There will be unpleasant mental feeling and there can be reaction on that. अब यहाँ पे जब हम संभाव में आ रहे हैं तो the kind of adjectives which are given and the fact कि उसमें लिखा गया कि एव रूप उपेक्षा रूपम सा नाति वर्तति, और उसमें लिखा गया है हमारी त्याग आधारित संभाव में लिखा गया है कि वो रूप को अतिक्रमण हो जाता है, मतलब रूप के आसक्ति को पार कर जाता है. So then it seems more like a mental factor, or you can say, this is the neutral feeling on the basis of which one can cross over the attachment to this. So we have to really see the implication in an appropriate manner, and probably both of them can be kept in mind. तो अब हम अगर इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें कि गृहस्थ उपेक्षा क्या हुई, और exactly what we did yesterday, same thing appears that because a person is ignorant, वो जो भी परिस्थिति आई है उसको ध्यान से नहीं देखता. And of course here so many things are written actually. अनादि नव दस्सिनो, जो उस अज्ञानता के डेंजर को नहीं देखता, कर्मों के बारे में ठीक से समझता नहीं है, तो परिस्थितियां जो आ रही हैं उस पे उनको ये नहीं समझता कि वो मेरे कर्म जनित है. And therefore, and yet he tries to ignore them all in some way or the other. So as a result of it, there is both a mental factor of upekkha, and then there is a feeling of that kind also maybe existing. Feeling of neutrality, because you are not bothering about what is happening. और जो त्याग आधारित संभाव है वो इनसाइट के बाद, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन इनसाइट इनटू द
nature of reality, a deepening insight from somanasya to domanasya to upekha. And उस डीपनिंग इनसाइट का क्या यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया गया, ऐसा संभाव रूप की आसक्ति को पार कर जाता है, which clearly indicates its important role कि ये उस आधार पे बेस्ड है कि हमने रूप के प्रति हमारा जो ना उसके प्रति आकर्षण है, ना उसके प्रति विकर्षण है, ना उसके प्रति कोई अटैचमेंट है, ना उसके प्रति कोई अवर्शन है. We have transcended the our sensory relationship with the रूप and similarly with the other sense objects. तो उस सेंस में the impact of it will be, जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था, स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं. So we are told, I mean, I remember in our 10-day courses also, respected Goenka ji used to tell in the beginning. That's up. Sorry. Just before you go there, can I quickly check? आप mental factor अलग कह रहे हैं, feeling अलग कह रहे हैं. Feeling is also a mental factor. So can you clarify that before we go into this? This is, I'm saying this is a mental feeling. सोमनस्य दोमनस्य जो है ना, वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट मेंटल फीलिंग है, मन पे स्पर्श होने के कारण जो फीलिंग जाग रही है. So they are used in that sense, mental feelings. Okay. आप उपेक्षा को you at some places said that it's a feeling and some places it's a mental factor. Yeah, and feeling can be at each sense door. No, yeah, that's okay. I'm at a different. My question is, I think slightly different. जी. आप feeling और mental factor को आप differentiate कर रहे हैं? Yeah, I'm not using the. I'm putting Vedana and Sanya outside the domain of Sankharas. Okay, जो हमारा usual connotation रहता है ना, जो हम सुत्ता बेस्ड स्टडी में जो हम कहते हैं ना वेदना, क्योंकि हम वो 5 खंड वाला पैराडाइम फॉलो कर रहे हैं ना. So आप mental factor कह रहे हो, you mean Sankhara basically? Yeah. Okay. Yeah. So maybe if I may request to just use that word then. जी. Then because when I look at the list, then it says feelings also mental factor. So then I get in a tizzy. वो अभी क्योंकि हम 5 खंडों की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में वही बैठा हुआ है. Yeah. So 5 खंडों के हिसाब से आप संखार कह सकते हैं. Yeah, you can be more clear कि उसमें what I mean is संखार. Thank you. Sorry for interrupting. ठीक बात है. वो प्रिसीजन की जरूरत है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए. ठीक बात. तो अब हम इसको, मैं चर्चा कर रहा था सुबह भी, तो मुझे ख्याल आया कि जब हम 10-day कोर्स में जाते थे तो वहाँ इंस्ट्रक्शन ग्रेडेशन दी जाती थी और कई बार कंफ्यूजन भी होता था. तो शुरू के दिनों में इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि वेदना जो आपको अनुभव होगा वो प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है. सजग रहिए, कहीं राग न जाग जाए, द्वेष न जाग जाए, समता बनाए रखिए. This was the instruction given in the beginning. And towards the end, and especially in the long courses, instruction given is अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट करें. I hope you will all remember that. Now, if you look at that, this is actually the 2 kinds of upekkha's. First is the gas-satani upekha. Second is the nekhamma-satani. First case में हम कर रहे हैं, हमको कहा गया है कि ऐसा करो भाई, सजग रहो, और उसको कहने का वैलिड रीजन है क्योंकि नया साधक प्रिय वेदना महसूस करता है तो समझता पता नहीं क्या मिल गया, और प्रिय वेदना आती है तो सोचता रहे मैं तो मेरे साधना खराब होगी. तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है भाई उसको देखो. अनित्य बोध की बात फर्स्ट फ्यू डेज नहीं ज्यादा कही जाती कि उसको समझो, उसमें बहको मत, एंड देयरफॉर maintain equanimity. Now we are being asked to maintain equanimity, so we are doing it on the basis of an instruction. So that is a typical situation of gas-satani, because we are not understanding true nature of whatever is happening. हमको instruction ये दी गई है कि भाई
प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी अनुभव होगा, उसको समता से देखने का प्रयास करो। अब हम कितना देख पाते हो हमें सबको मालूम है, कितनी मुश्किल होती है। But then slowly and slowly, as the teaching becomes more detailed, Trilakkhanaths are explained, and then especially in long courses, the whole focus right from the beginning is Anitya Bodh के आधार पर समता पुष्ट करें. This instruction is not given then कि आप कोशिश करिए maintain करना. You know, as in the very long courses that kind. So what is that? It is said आपको अनित्य बोध समझ में आ गया है ना. अब अगर समझ में आ गया है तो जानिए कि ये जो अनुभव हो रहा है ये भी अनित्य है. तो उसको सीख करने की जरूरत नहीं है. You don't have to hold on to that or repel this. And with that understanding, with that insight, develop the practice equanimity. So exactly same thing I can see is the kind of word. I mean, similar words have been used here. यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि ये जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं, जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप, वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो संभाव जागता है. एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम कई बार समता शब्द में भी कंफ्यूजन हो जाता है. संभाव इसलिए मैंने यूज किया, बैलेंस्ड, हैव सिमिलर व्यू टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस. समता का भी एक्चुअल मीनिंग वही है हिंदी में, बट दिक्कत ये होती है कि पाली में जो समथ शब्द है उसका मतलब अलग है. उसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस ऑफ ट्रैंक्विलिटी. तो हम उससे कई बार मिक्सअप हो जाते हैं. समथ और समथ को एक जैसा समझ के we get into confusion. This I think many times earlier also it was pointed out, but I think it is worth pointing it out at this moment also. Bante ji suggested that कि भाई वो डिस्टिंक्शन हमें बना रहा है, इसलिए मैंने वो शब्द संभाव यूज किया, which is actually a synonym of the word samta, which respected Goenka ji uses in his retreats. तो अब हमको समझना है कि एक तरह की जो उपेक्षा भावना है, वो एक तरह का जो उपेक्षा का मेंटल फैक्टर मान लीजिए, समझ लीजिए, संखार है सर, वी शुड से दैट. तो उसको बैलेंस है जो हमारा मन में, जैसे डेफिनेशन दी जाती है अपने मंगलसूत्र में, क्या डेफिनेशन दी जाती है? फुट्टस्य लोक धम्मे चित्तंग यस्य न कंपति एंड अशोकम एंड सो ऑन. तो ये बात जो है, फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तंग यस्य न कंपति, लोक धम्मों के संपर्क से जिसका चित्त कंपायमान नहीं होता, उसको उपेक्षा भावना एज ए मेंटल फैक्ट, एज ए संखारा कहा जाएगा. ये उपेक्षा भावना है, चित्त का कंपायमान ना होना, जो हमारे लोक धर्म है. और दिस ऑल्सो, वो लोक धर्म तो मेंटल चीजें हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स विद रिस्पेक्ट टू बॉडीली फीलिंग्स, प्लेजेंट अनप्लेजेंट एंड सो. तो उस सेंस में उपेक्षा भावना को आप समझ सकते हैं एज ए संखारा, एज एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट. बट उसके साथ दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि न्यूट्रल फीलिंग है. तो अगर हम एक्सपीरियंस को भी देखेंगे, इफ यू सी दी, if you are practicing meditation and you're practicing it intensely, especially the body contemplation, तो वो उसके साथ रिलेट हो जाता है कि अगर आप सजग हैं, अगर सजग हैं और फीलिंग्स न्यूट्रल हैं, तो आपका उपेक्षा भाव रहेगा. और सजग नहीं है, फीलिंग्स न्यूट्रल हैं, तो विल बी इन ए अपैथेटिक स्टेटमेंट, इग्नोरेंस. तो ग्रहस्यतानी और नेखमस्यतानी उपेक्षा की बात हमारी सजगता पे, when we do practice deeply, वो उस तरह से समझी जा सकती है. कि कई मोस्टली तो हम सामान्य जीवन में न्यूट्रल फीलिंग्स को बॉदर ही नहीं करते, तो हमको लगता है मन हमारा कोई बैलेंस में है. I mean, there's a kind of imagination we have in our mind. So that is a typical example of गैसतानी उपेक्षा. बट हम जान रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सपीरियंस हो रहा है, ना प्लेजेंट है ना अनप्लेजेंट है, और उसको जानते हुए, सजग रहते हुए, उसके अनित्य बोध को समझते हुए, जो उस इंसाइट के आधार पर जो भाव जागेगा, जो हमारा मन में बैलेंस जागेगा, वो
अलग तरह का हो, which will be नेखम्मसितानि, because it is based on insight. तो जो भी नेखम्मसितानि, सोमनस्य, दोमनस्य हैं, ये तीनों insight के ऊपर based है. They are not based on sensory impingement primarily. Insight arising from sensory impingement. I hope this will help in clarifying. अगर अभी भी कोई प्रश्न हो तो we can clarify it even more. एक बार आपने इसका मतलब इग्नोरेंस से भी बताया था, इग्नोर कर देना. जैसे कोई आप किसी जगह पर हैं और आप पानी के स्वाद को ही नहीं देख पा रहे, वो भी नहीं, वो न्यूट्रल फीलिंग थी. हाँ, न्यूट्रल फीलिंग है, एंड आप उसके प्रति सजग नहीं है. अगर उस पानी के पीने के प्रति जो फीलिंग जाग रही है उसके प्रति सजग नहीं है, आप उस फीलिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी अनित्यता नजर आ जाएगी. तो उस न्यूट्रल फीलिंग के आधार पे हम अगर उसको इग्नोर कर देते हैं तो, और हमको लगता है हमारा मन में तो कोई ना राग जागा ना द्वेष जागा, तो हम सबसे हम तो बैलेंस में हैं. लेकिन वो इट इज a lower kind of balance, if I may use that word, गैसतानी उपेक्षा. while उसको जानते हुए और उसके अनित्य बोध को पहचानते हुए अगर हम बैलेंस बना के रखते हैं तो that will be a नेखम्मसितानि उपेक्षा. तो प्रिंसिपली मैं इसको वैसे समझ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा जो आपने कहा उसको जैसे मुझे समझ आई है मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा. सो प्रिंसिपली हमें सेंस कांटेक्ट होता है, फीलिंग होती है, फीलिंग को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के बाद टू द एक्सटेंट की 3 लक्षण क्लियर हैं, जिस हद तक इक्वानिमिटी बनी रहती है उसकी हम अब बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल. सो दिस इज नॉट कि मैंने सेंस कांटेक्ट हुआ और सो टू से मुझे कुछ नहीं हुआ, ये हम अब वहां की बात नहीं कर रहे हैं. नहीं, वो तो that's a that is not this is the not there's no insight in that. वो सेंस कांटेक्ट हुआ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, that may be out of ignorance. Yeah. Just ignoring the impact, not bothering about it, and due to various reasons. Any other reasons, but Any mainly other. the issue is now to look out कि having felt whatever I feel, what am I doing with it? Yeah. And to whatever extent one is not giving into that feeling, or to whatever extent one is enduring it. That will be the part of practice. What is being defined here, what we are trying to understand is how would you define the somanasya, domanasya and upekkha, which is the key thing is which is based on renunciant kind of a mindset, which is based on insight. So I think rather than using renunciant word, अगर हम कहें ना कि insight based, तो शायद ज़्यादा clarity आ जाएगी. एक है सोमनस्य arising on sense contact,
दूसरा है arising on insight, based on understanding of sense contact, based on understanding of nature of sense contact. Similarly, yeah, I got that. Similarly, there is domanassa arising either on sense contact, or there is domanassa arising as a result of realizing the nature of that sense contact, which is basically the extent to which तीन लक्षण clear है. Yeah. Now, third वाले में क्या हो रहा है? Sense contact. Yeah. And now, again, same thing. Insight has deepened to the extent that the pleasant and unpleasant experiences felt earlier are seen to be also themselves impermanent. Oh, this is what you were saying yesterday. कि ये तीसरा ये highest grade है. Highest grade, yeah. Even of insight, because वहाँ भी insight तो है. Yeah, these are deepening insights. No? These are deepening insights. That is first level insight, second level insight, and this is the deepening insight. And So- this is the last thing which is to be over, which is to be dropped finally. Right. So even insight-based relief को इसने छोड़ दिया. Even insight-based whatever, Yeah. unpleasantness or whatever you want to call it. Because भी it is ultimately a sankhara. Yeah, okay. So even insight-based relief is not really relief. Huh? That's a very Yeah, that's tremendous statement. Normally हम लोग उपेक्षा को अंतिम भोजंग मान के रुक जाते हैं. Ultimately, even that is to be dropped. आपको याद है इसके आगे का जो पोर्शन आता है उसमें. Yeah, we'll come to that. That's अभी यही रहते हैं ना. Yeah, because till yesterday, at least मेरी धारणा ये थी कि चलो insight based relief तो कम से कम कुछ domains में कुछ quarters में within experience है, so that's great. So it is a staircase. That's the example. Yeah, it's a way station. You go from one stair to another to another. Normally कहा जाता है let go. अब let go क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे करो. That's a very big teaching. इसके आधार पे इसको let go करो, इसके आधार पे अंत में कहा गया भैया अब इसको. Sure. But we'll get to that. My request is उसको अभी आप picture में मत लाओ because it's confusing enough already. The gradation part will become clear now if you keep that in mind. कि ये grades हैं. One, this first level, second level, third level. So we are going to use these experiences ultimately for that purpose. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि वर्ल्डली हैप्पीनेस को ओवरकम करने के लिए अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस है और फिर उसमें अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस को ओवरकम करने के लिए more than other worldly happiness. So similarly here it is the case. So our sutta does not say that nekam, or does it say, actually मुझे याद नहीं आ रहा है, but nekam sitani somanas को ट्रांसेंड करता है तब नेकम सितानी दोमनस पे पहुंचता है और जब उसको ट्रांसेंड करता है तब ऐसा नहीं है ना. इट इज बिटवीन गे सितानी एंड नेकम सितानी. Eventually as we develop them then we leave one and go to another. There's a sequence laid down. Yeah, that's where actually अभी मुझे अभी ये ख्याल आया. अब तक I was taking it like this 1 2 3 4 5 6 steps and then the 7th step.
suddenly I realized, and maybe I'm wrong, that गेह सितानी सोमनस को ट्रांसेंड करके नेखम सितानी सोमनस पे पहुंचता है. नाउ अभी से कि उसको भी ट्रांसेंड करके फिर नेखम सितानी दोमनस. दैट्स नॉट द केस, नो? और इट इज? And let me, I think I'll give a brief account of it in a very simple language. तो फिर उसको back, we can go further and then come back, okay? Because it will help. क्योंकि हमने कुछ हद तक ये पहले चर्चा की हुई है, वर्ल्डली और अदर वर्ल्डली को कैसे ड्रॉप करना. तो अब अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए तो इट वाज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट टू एनीबॉडी क्या हो रहा है. जो लेखम सितानी सोमनस्य है, इट हाउ इज इट अराइजिंग? अब तुम ही बताओ बेटिया, हाउ इज इट अराइजिंग? Sir, when one sees the Tilakhan, Anicca, Dukkha and Viparinam Dhamma of anything that was pleasurable by far. Yes. So what does it mean? What will be its effect? Ki now it will not be pleasurable. One is not bothered about it really. Then the pleasurable जो ग्रहसितानी सोमनस्सानी है वो उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा. So that's it. That's what it says. Correct. Based on this, transcend this. देखो बहुत ही अच्छी एग्जांपल देते हैं उसमें. वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो कहते हैं एक सीढ़ी से दूसरी चढ़ने के लिए आप पकड़ के रखते हैं ना एक सीढ़ी का. ऐसा नहीं कि छोड़ के जंप कर रहे हैं. You have a support available. So he's not saying you let go of the grahastha this. He says you take another one. गृहस्थ सुख को छोड़ के आप वो वाला सुख पकड़ो अब. और वो अपने आप अगर आपको उसका आभास होने लग जाए, नेखम सितानी सोमनस्य का आभास होने लग जाए, तो उसका तो महत्व ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा. क्या महत्व है इसका? तभी तो वो जागेगा. And slowly we work on it and it starts dropping off. है ना? And then we move further कि हाँ हमारे कुछ चीजें तो ड्रॉप हो गई यार, अच्छी बात, लेकिन कुछ नहीं हो रही, अभी भी मैं अटका ही हुआ हूँ. So then you begin the search for a deeper realization. कि अभी की जो realization है वो पूरी तरह sufficient नहीं हो पाई सारे दुख दूर करने के. So then that's inner लालसा, जैसे कहा ना हमने, लालसा जागती है कि मुझे काम करना चाहिए भाई और गहराई से. तो उसे कहा गया कि नेखम सितानी दो मनस्य जागा. और जब ये जागता है, जैसे कल भी चर्चा की थी, शायद आपने कमेंट किया था, कि फिर वो जो सामान्य जीवन की जो अप्रिय परिस्थितियां हैं वो गौन होने लगती हैं, बिकॉज हमने इतना बड़ा भारी दुख पकड़ लिया और उसको बड़ा मीठे तरीके से, बड़े प्रेम से, समझ से पकड़ा है. वो हमने पकड़ा है उसको. तो जो जीवन में दुख आ रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, शब्द अच्छी आवाज नहीं सुनने को मिली, मैं ये खाना चाहता था वो नहीं, all these become insignificant because the moment you see that, you remember there's a sword hanging on my head. There's a sword hanging on my head which will take me around again and again. अभी तो ये नहीं मिला, अगर मैं इसी में चक्कर में पड़ा रहा तो अगले जन्म भी ये करता रहूंगा, ये करता ही जाऊंगा. So all that becomes insignificant. Actually, it is transcending that. No? Those things become insignificant. Similarly, you go to the deeper level. Normally हमको लगता है मैं समता में रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है. Then you see the deeper level of it arising out of impermanence. And when you see the impermanence in such depth, then this equanimity looks like childish thing. ना? कि क्या कर रहा था मैं अभी तक? अपने आप को बुला के ignorance is bliss, typically उसमें रह रहा था मैं. And that will just drop off. I'm not going to do that such foolish things again once I understand this. So this sequence is absolutely straightforward, really. Dropping off नेखम सितानी के आधार पे corresponding सोमन जो ग्रह सितानी वो अपने आप drop हो जाएगा. Actually, the process of regeneration is such that they will lose their significance. Sir, इसके बाद जो होगा वो हमको थोड़ा और subtle है. ये is this clear?
Sir, that's where my question is that 1-to-1 correspondence तो मुझे समझ में आ गया कि घे सितानी to नेकम सितानी, that is very clear. The thought that came in my mind was कि अगर एक चीज के प्रति मुझे चिपकाव है और then I see it's अनिच्चा दुक्खा विपरिणाम तमा, वो ड्रॉप हो गया. Then there are some other things parallelly in my life which I'm lacking. So I don't have to, or I mean in progression, those 1, 2 and 3, 4 can be going parallelly also, na? Yeah, of course. They'll all be good. All these three operate parallelly in our life. We know it. ऐसा तो है नहीं कि हमेशा दुखी रहते हैं, और ना ही ऐसा कि हमेशा हम सुखी रहते हैं, ना ही हमेशा हम इक्वानिमिटी महसूस करते हैं. हमेशा हमारी प्लेजेंट फीलिंग हो, ऐसा नहीं होता. हमेशा अनप्लेजेंट फीलिंग हो, हमेशा हमको कोई चीज नहीं मिल रही, ऐसा थोड़ा ना होता है. मिलता ही है कुछ ना कुछ. कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, और कुछ चीजें हम बॉदर नहीं करते. नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या फर्क पड़ रहा है ना. दिस इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस which happens parallelly. कभी ये, कभी ये, कभी वो, कभी ये. And one by one we handle each one of them. In each domain we develop the higher, so-called higher understanding. Yeah, this is somewhat higher. This is higher, based on insight. Insight-based happiness, insight-based unhappiness, insight-based equanimity. We say, oh, these things become less and less significant. They just get dropped off. You don't have to do any effort to drop them. When we taste a more subtle happiness, why should you bother about smaller happinesses? When you have a deeper suffering, smaller sufferings have no meaning, because you relate them to the same thing. They are only subsets of that main thing. And when we have a deeper equanimity based on understanding, this childish equanimity doesn't mean anything to us. It's just that the tendency will slowly drop off. So then we can see that each of them is in a gradation. They are actually, one by one, they are gradations of that kind. The Nekhamma Sitani experience is superior to the Gaya Sitani experience. सर मैं थोड़ा सा वो जो आपने बोला कि न्यूट्रल फीलिंग है, और जब मैं मतलब आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि न्यूट्रल फीलिंग है, न्यूट्रल फीलिंग के बाद अगर मुझे अनित्यता का बोध नहीं हुआ है तो वो इग्नोरेंस है, और अगर मेरे को हो गया है तो फिर देन इट बिकम्स, देन इट इज इक्वानिमिटी. इज दैट सो? उस न्यूट्रल फीलिंग के प्रति मेरी इंसाइट जागती है, ये भी अनित्य है, असंतोषजनक है, वो अपने बस में नहीं है. जब ये तीनों बातें मेरे ठीक से समझ में आ जाती हैं, तो मेरे मन में उसके प्रति भी एक संभाव जागता है. और वो संभाव जो है इस अंतर्दृष्टि पे, इस इंसाइट के आधार पर आधारित है, which is a very deep, because insight has a very deep impact, and as it becomes stronger and stronger, it permeates our life. So तब हमारा को उसको नेखम सितानी पे. तो रिव्यू करने की जरूरत है कि अभी तक की जो इक्वानिमिटी थी, वाज इट मतलब गेह सितानी? Yeah, it will be helpful, certainly. It will be helpful for us to check up on that. Most of the time, so it will be of that kind only. But there may be occasions as we develop in progress in Dhamma, we become cognizant of it. Yeah, that thought of, जैसे मैंने कल भी शायद कहा था कि जब अनुभव होता है तो इससे पहले कि वो अनुभव हमें प्रिय अप्रिय लगे, ये याद आ जाता है कि ये अनित्य है. एंड इवेंचुअली जब वो याददाश्त इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर एक्सपीरियंस अपने आप कंट्रोल हो जाता है. उस प्लेजर, उसकी प्लेजेंट फीलिंग में कोई टेस्ट नहीं रहता, उसके अनप्लेजेंट फीलिंग में कोई टेस्ट लगता नहीं. सो इट बिकम्स नेचुरली
with progression of insight, you experience mostly the peace of neutrality or peace of kind of. This is actually experienced during practice. You can experience it is always the case that whenever you experience anicca, you will always get an insight. Is that a case? Always. Yeah, depending on the depth to which you see anicca, dukkha, anatta. Yes, that is the way to develop insight through the nature of experience. Sir, can I put something? जी जी बताइए. सर, जो आपने बताया वो तो सारा समझ आ गया. अब मैं कुछ ये समझना और चाहता हूँ प्रैक्टिकल वे में कि मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ और मेडिटेशन करने के लिए बैठने के बाद में जो विचार आते हैं माइंड के अंदर, मन के अंदर, उन विचारों को कुछ कहता नहीं, आने देता हूँ और सजगता से उन विचारों को देखता रहता हूँ. और उसके बैकग्राउंड में ये चलता है कि भाई ये विचार आए हैं, टेम्परेरी हैं, चले जाएंगे धीरे धीरे. आ गया ये. उसके साथ साथ कभी कभी फिर जो है, जो शरीर पर प्रतिक्रिया हो रही है, सेंसेस हो रहे हैं, उनको देखने लगता हूँ कभी कभी. तो इस तरह से मैं बैठ लेता हूँ कि कभी विचारों के प्रति ये मान करके ये चले जाएंगे, टेम्परेरी हैं, अनित्य के भाव से. और कभी कभी जो है सेंसेशन को जैसे विपස්සना में देखते तो उस तरह देखने लगता हूँ. तो क्या ये मेथड जो है आपको प्रोग्रेस करने के लिए ठीक है या और कुछ चेंज की जरूरत है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात. आप काया वाली वेदना पे काम कर रहे हैं, है ना? काया पे जो वेदना हो रही है आप उस पे काम कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है. लेकिन वेदना बाकी भी होती रहती है ना. अनुभव तो हमारा आंख के नजरिए से भी होता है, कान से भी होता है, टेस्ट से भी होता है, विचारों से भी होता है. मैं सभी अनुभव को एक साथ जैसे अनुभव हो रहा धीरे धीरे आइडेंटिफाई न करते हुए कि आंख का है या ये कान का है या ये जीभ का है, ये मान करके सारा ही टेम्परेरी है और अनित्य के भाव से उसको देखता रहता हूँ जब तक मेडिटेशन में बैठता हूँ. सभी को एक साथ जैसे जो हो रहा है दैट्स ऑलवेज टेम्परेरी. हाँ, अगर आप सबके प्रति सजग हैं, अगर उनके प्रति सजग है, जी हाँ, ये शब्द आया, ये गंध आई, ये टेस्ट है, ये थॉट है, तो अगर सबके प्रति है तो ठीक बात. तो ये आप उस तरह के जो ओपन अवेयरनेस की बात कही जाती है, आप उस तरह से साधना करते हैं. बट दिस इज वन डायमेंशन ऑफ द प्रैक्टिस. Then we have to further practice about our perceptions. We have to practice about the sankharas, the 5 खंड है, उन सबके ऊपर करना है प्रैक्टिस. that will go to micro stage, one can say it. नहीं, हाँ, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो सब हर एक खंड के ऊपर, हर एक खंड के ऊपर further weakening of the sankharas which are सर. यहाँ थोड़ा सा और समझना चाहूंगा मैं, जो मैंने एक बार कृष्ण मूर्ति का कहीं लेक्चर सुना था तो उसमें थोड़ा फर्क है, वही चीज है करीब करीब. आप काहे को उसमें पढ़ते हैं? नहीं, थोड़ा सा सर एक दो लाइन, मतलब इज सेम थिंग और सम डिफरेंस. नहीं, अब मुझे मालूम नहीं ना आपने क्या पढ़ा है. अरे वही वो विचारों को वो यही कहते हैं कि जो हो रहा है चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं. हाँ, वही उसी वजह से. अगर आप सचमुच में चॉइसलेस अवेयरनेस कर रहे हैं, जिस हिसाब से भगवान बुद्ध ने भी वही बात कही है, अब वो उन्होंने पूरा डिटेल में पूरा एक मैप बना दिया है, क्या क्या देखना है, कैसे देखना है. उन्होंने सिर्फ एक शब्द बताया और जिसके समझ में आ गया वो कर पाया, जिसकी नहीं आया. सर वही मैं सोचता हूँ सर, वही पूरे डिटेल में मैप बनाया हुआ है ना भगवान. नहीं, मैं समझ गया. दिस इज ए प्रोसेस. अदरवाइज हम लोग सब कहते हैं कि टेम्परेरी चीजें हैं ये, लेकिन उस स्टेज पे हम लोग नहीं जा पाते. दिस इज प्रोसेस. आई फुल्ली अप्रिशिएट सर एंड आई कुड अंडरस्टैंड इट. थैंक यू. Thank you. Sir, so just to understand the
उपेक्षा के अंदर जो हमने दो चीज की बात की, एक तो संस्कार की और दूसरी वेदना की. आई एम जस्ट यूजिंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. तो अगर नेखम सितान गेह सितानी उपेक्षा की एक बार बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ने, जैसे मैंने कोई अप्रिय शब्द सुने, मेरे को किसी ने कुछ भला बुला बुरा कहा और मैंने अप्रिय शब्द सुने, मुझे लगे तो अप्रिय है, बट आई सेड नहीं नहीं, इट्स ओके, यू नो, आई एम ओके विद दिस, बेसिकली लिटिल सुपरफिशियल, एंड देयरफॉर आई एंटरटेन द आइडिया कि मैं संभाव में हूँ. तो यहाँ पे जो वेदना है वो तो अनप्लेजेंट वेदना है, बट उसके ऊपर मैंने उसको इग्नोर कर प्रोजेक्शन. दिया. हाँ मैं जी. नोट ही नहीं किया उसको. हाँ हाँ, मैंने उसे नोट ही नहीं किया, मैंने प्रोजेक्शन किया कि मैं आई एम ओके विद दिस. नाउ इंस्टेड ऑफ नॉर्मली दैट. जस्ट आई एम टेम्प्टेड टू से, नॉर्मली कहेंगे अरे मूर्ख है यार, जाने. So we have a perception which is used to cover up the unpleasant feeling. इस तरह की चीजें करते हैं ना हम. जी. एंड देन इफ आई यूज द सेम सिचुएशन दैट अप्रिय शब्द किसी ने मुझे कहे, आई हर्ड देम एंड आई सी देम एज अनिच्चा दुखा विपरिणाम धम्मा, एंड देयरफॉर there is no reaction that arises. That is the त्यागाधारित संभाव. That will be the natural, the pure sambhav, if you can say Yes. that. And in both these cases, असुखद अदुखद वेदना, यानी न्यूट्रल वेदना और उपेक्षा वेदना पर से may not have a role, may not, potentially. If अगर वेदना, अगर हमारी insight really developed, depending on intensity of insight, the Vedana also begins to change. I can say it from experience. Of course, it depends on the long, how much कितना हम unpleasantness को झेल पाते हैं. ये भी एक लिमिट है ना, हमारी सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है. क्या इतनी जो अब्जॉर्ब हो जाती है, उससे ज्यादा होती है तो फिर वो उसकी अनित्यता अनित्यता सब भूल जाते हैं. So that is a practice we have to do, you know, to develop that abilities more and more. And उसके लिए हमें बाकी सारे खंड को करना पड़ेगा, नहीं होगा नहीं. खासतौर पे परसेप्शन को रोकना पड़ेगा, है ना. That's pretty, and इंद्रिय संवर करना पड़ेगा ताकि रिएक्टिविटी कम हो. So there all this teaching is all joined together. तो वो सब उसके मिलके सारे काम है. अगर आप उपेक्षा के बाद से मुझे अभी याद आया, जैसे शर्मा जी की बात कर रहे थे ना सती पठान की, आप ये विचार करिए कि जब भगवान सती पठान में कहते हैं सैरागंग व चित्तंग सैरागंग चित्तंग ति पजानाति, व्हाट डज इट मीन? मेरे चित्त में राग है, मैं जान रहा हूँ. तो चित्त में राग है तो मैं जान कैसे रहा हूँ? आपने विचार किया कभी इस पे? सर, वो जब हम अभिधम वाले वो माइंड मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तब आपने बताया था कि नेक्स्ट वाले माइंड मूवमेंट के थ्रू प्रीवियस माइंड मूवमेंट को ऑब्जर्व करके बोलता है कि ये राग था. तो उस माइंड मूवमेंट में जो नेक्स्ट मूवमेंट जिसमें हम देख रहे हैं, उसमें हमारी इक्वानिमिटी होगी तभी हो पाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? So it is integral to the practice. सर फिर तो इक्वानिटी है, लेकिन फिर वो उसमें अनित्य और उसका बोध नहीं आता है ना सर. वो जो ऑब्जर्वेशन है, that observation is there, but what you are saying is more than that actually. वो equanimity can be pretension of equanimity and a genuine equanimity. A genuine equanimity will be based on understanding and practicing. मैं कहूँगा सीखा की जो सीख रहे हैं हम, तो हम उसमें एफर्ट लगा के इक्वानिमिटी रखते हैं. तो ठीक है, सीख रहे हैं, धीरे धीरे अनित्य बोध पुष्ट होगा. उस आधार पे इक्वानिमिटी पुष्ट. इसलिए बार बार कहा जाता है नित्य बोध के आधार पे समता पुष्ट. It's always constantly this is said, to the extent कि we just ignore that. ठीक है, बोलते रहते हैं. हमें क्या करना वो हमें पता है. And we forget कि
It is not a artificial kind of something I am doing, but something which is the result of insight. तो वो दिक्कत हो जाती है. If I am doing and maintaining equanimity, there is a sense of I involved in it. I am trying to do some balancing. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इधर ना जाए, ना इधर ना जाए, इधर बनी रहे. दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, समता बनाए रखनी है, मुझे समता बनाए रखनी है. That's what we do, isn't it? That's what, sir, actually जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरे मतलब मैं क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ सर कि मेरे ये आप when you are able to see the next moment, that ingredient is always already there if you are able to see the next moment. जैसे आपने भी कहा और अभी समझा नहीं. तो समझा नहीं. मेरे कहने का तात्पर्य कि वो उसमें ऑलरेडी अनिश्चितता है, तो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरे में मतलब लाइक नेचर में तो अनिश्चितता मतलब है ही है, उसमें कोई डाउट थोड़ा ना है. हम में इंसाइट डेवलप हुई कि नहीं, वो महत्वपूर्ण बात है ना बेटा. नेचर में तो अनिश्चितता है, वो तो बदल जाएगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. माइंड मूवमेंट चेंज होती रहेंगी, बट हमने उसको पहचाना और उससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो बात नहीं. सामान्यतः क्या होता है, मैं अपनी बात बताऊं. The first time I experienced dissolution, it was a wonderful thing. अरे बहुत कितना अच्छा लग रहा है, सारे शरीर में तरंगे ही तरंगे फैल रही है. I have attained something. नहीं, गुरु जी ने कहा था कि अनित्य बोध रखना. अच्छा चलो अब करो, इसको देखो, ये अनित्य है, अनित्य है. Is what I was doing. So then you try to do, okay, I am trying to maintain that. So it is just a not infinitesimal level of intellectual understanding of anicca. And it helps, of course. And then you practice. Next time it happened, it was better. Third time it was even better. Slowly and slowly it happened. But it was never to the extent it was absolutely natural. I had to work on it. So as long as I am working on it, it's good. मेरी insight develop हो रही है. A stage will come and I don't have to work on it. I know it is so. I don't have to then even say anitya. It is a part of my default state of my understanding. तो वो transformation, वो जो change है ना, that is the transition from made up equanimity and natural equanimity based on insight. That's so practically I'm telling you what happened in me and what happens with all meditators who are keen to practice properly. तो वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस को खास तौर पे देखना बड़ा मुश्किल है बेटा. अनप्लेजेंट तो देख भी लेते हैं. इतना प्लेजेंट एक्सटैटिक एक्सपीरियंस हो रहा है, तो just forget every damn thing of impermanence and everything. Then suddenly the voice rings back because you're hearing constantly, अरे ये क्या हुआ, अच्छा जी अनित्य देखना है, चलो देखो अनित्य. And by the time you do it, the whole experience is gone. And then you regret, अरे मैंने रिएक्ट कर लिया. So that's how by fits and starts, by जैसे यांचा कहते हैं ना, 75% of the practices कि आप भूल जाते हैं, करना क्या मालूम है लेकिन भूल जाते हैं. This is what happens, and that's how slowly and slowly. इसलिए तो टाइम लगता है. इसमें कोई दोष नहीं है. That's the way we progress. जी सर. और समझ अगर नहीं है तो क्या होता है, you can enjoy it. I remember one meditator, when I was conducting course, he would come. गंगा जी ने क्या साधना सिखा दी है, क्या धारा प्रवाह होता है, आनंद ही आनंद. 50 कोर्स कर चुका था. क्या कहें उसको, वेरी ओल्ड मैन. उनसे आदर पूर्वक कहा कि आप इंस्ट्रक्शन सुनिए, उसे क्या कह रहे हैं. That is the height of no understanding of anicca at all.
So it will fall under Gayasitani Somanasya, enjoying his nice time and developing more and more praise. सर आपके एक्सपीरियंस में आप रियल लाइफ में कर पाए तीनों चीजों को एक साथ? एक साथ मतलब बेटा? मतलब सर अनित्य अनंत लाइक देख पाए आप? मतलब डे टू डे लाइफ में हम तो बीच बीच में हो जाता है कभी कभी, not always. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. Still I'm learning ना. जैसे तुम सीख रही हो तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. हो सकता है एक आध कदम इधर आगे पीछे हूँ. Learning, yeah, certainly. But the dropping has certainly happened. Many things have dropped off. And the sting of domanassa doesn't operate for any considerable length of time, because there's a much bigger sting hanging on the head. So this I can say for sure. So this is core level of practice. Sir, क्या कह रही हो? ये core level of practice मैं मानूं. This is this is the crux actually. Yeah. This is one of the approaches, and this very beautiful approach, क्योंकि हम लोग को लेट गो के लिए कुछ पकड़ने की जरूरत पड़ती है. दिक्कत ये है. Tana should be let go of. Yes, okay, very good. We try. There also we try, because our insight is not so strongly developed. So here he is saying, है ना, जैसे बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है, उस तरह सिखाया जा रहा है. You let go of this, okay, grab this. Now you let go of this, grab that. Now you let go of this, grab this. अब तीन चीजें ग्रैब करा दी, हम उनको भी करके लेट गो करा देंगे. That's a very great. I find it very reassuring कि मेरे से भी कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद है मुझे. And I wish and pray that all of us get that feeling. Certainly there is. You can do that, yeah. सर ये बच्चों वाला सुनता है तो हमारे तो कोई स्कोप ही नहीं है. हम इसमें इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. हम सब अच्छे ही हैं बेटा. That's okay. You don't have to have any. There isn't much. Insight is insight. Can develop very quickly. Insight का फायदा यही है ना कि वो फिर ड्रॉप नहीं होती है. जीसस क्राइस्ट ने बोला only kids will enter the kingdom of God. Yes. See, the issue of equanimity is spread all across every tradition actually. Greek tradition में stoicism था, and in Bhagavad Gita you read it very clear. Sukh dukhe samay kritva labha labho jaya jayo. It's the same thing. Sukh dukh को बराबर करो, सम कृत्वा, लाभ लाभ जलाभ रानी, जय पराजय, सुख दुख समान मानो. That's what is equanimity. But how to do it? That's where the Buddha comes to our help. Do this, investigate like that, practice like this, observe where you're attached, at the body level, at feeling level, at some perception level. That's it. Great map laid out before us. सुख दुख किससे जाग रहा है? परसेप्शन के कारण जाग रहा है. लाभ और हानि हमारी, किसी ने हमको बुरा कह दिया, हमारे विचार को नीचे दिखा दिया और हम दुखी हुए जा रहे हैं. Then that's the greatness of a Samma Sambuddha. So we should all pay deep homage to him, Bhante ji.